Praise the Lord Gospel Vibrants. With warm regards, I welcome all our youth vibrants in this youth night meeting. हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हमारे सभी यूथ वाइब्रेंट्स को अभिवादन। As we all know, this is our second youth night meeting. Are we all ready to come one step closer to our Most High? जैसे कि हम जानते हैं आज हमारे यूथ नाइट मीटिंग का दूसरा दिन है, तो क्या सभी यूथ परमेश्वर के एक कदम और करीब आने के लिए तैयार हैं? राहुल, क्या आप तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या सभी यूथ तैयार हैं? Yes. तो आओ पूरे जोश के साथ हम इस यूथ नाइट मीटिंग को शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ प्रभु की बेटी पूनम आगे आके प्रार्थना से अगुवाई करे। I would like to call Doctor of God Poonam to pray for this session. Everyone close your eyes and bow your heads. Let's pray together. Heavenly Father, I thank you for this day, this life and all the blessings you gave us until now. Thank you, Lord, that today we are able to be in your presence. Today I ask you to go before us, guide us and strengthen us. I pray unto you to inspire us and help us to worship you with all of our heart. Provide a way for those who lack something. My Lord, guide us to learn your words. Thank you for listening my prayer. We are starting this day with plenty of gratitude in Jesus' name. Amen. Youth Vibrants, let's worship together and raise the name of our Almighty Jesus Christ through the song, Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. When the sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name.
Hallelujah. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah. Youth vibrants, let's worship for the Lord, who is the most high in this whole world. Hallelujah. Let's worship for the most high. He is the one who's ruling this world. He is the one who's caring for us. He is the one who has always leaded us. Hallelujah. Let's raise our voice and worship for Him. Hallelujah. Rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. मेरे मन को सदा, मेरे मन को सदा कहता रहे, प्रभु ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। मेरे मन तू सदा कहता रहे, कि धन्य है। दिल की गहराई से, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। Bless the Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing together, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hallelujah. Hallelujah. We will lift our hands and give praise to God for this wonderful worship God gave us to Sister Sneha. Thank you, Jesus. Amen. Now I would like to call Pastor Elvin to take the paradise. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. It's a great privilege and honor to be with you all. ये प्रभु यीशु मसीह का बड़ा सौभाग्य है। ये हम सब का एक बड़ा सौभाग्य है आज मिलकर प्रभु यीशु मसीह के वचनों में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाने का एक शाम का समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। थोड़ा बेस ओके बच्चों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अच्छी आराधना हमारे जवानों के जरिए प्रभु ने हमें दिया।
आगे के समय पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमें ब्लेस कीजिए। एक सुंदर दिन आपने हमें दिया प्रभु। आज इस जवानों की शाम में परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ने के लिए, तेरे दर्शनों में बढ़ने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए हम सब आए प्रभु। जितने बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं, आप सभी को आशीष करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ पिता। इनमें से कुछ नौकरी करते हैं, इनमें से कुछ कॉलेज में हैं, इनमें से कुछ स्कूल में हैं। हर एक बच्चों को आप छू लीजिए परमेश्वर। प्रभु हमारा जन्म एक मकसद से हुआ है, हम विश्वास करते हैं प्रभु। सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए नहीं प्रभु। इस सृष्टि के रचना करने वाले यीशु के नाम को फैलाने के लिए, उस खुदा के सुसमाचार को फैलाने का एक मकसद से आपने हमें चुना है प्रभु। इस विश्व में जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी कलीसिया हैं, हर एक व्यक्ति को आप मार्गदर्शन दीजिए खुदा। प्रभु आने वाले समय आपके पवित्र वचन की ओर हम जाने वाले हैं प्रभु। आप हमसे बातें कीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। आप हमें एक नया शेप दीजिए परमेश्वर। प्रभु आज बहुत कुछ तुझे महिमा ना देने वाले आकार में हम चल रहे हैं। हमारे अंदर ऐसे कुछ स्वभाव हैं जो यीशु की रोशनी को ढांकते हैं। हमारे परिवार में ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो हमें दबाती हैं, लेकिन प्रभु आज के वचन में आप एक नया रोशनी हमें देंगे, नया शेप हमें देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। सारा आदर महिमा यीशु राजा एवं आपको मिले। यहाँ प्रभु जी अच्छा लीड बच्चों ने किया, अच्छी आराधना बच्चों ने की, अच्छा म्यूजिक बजाया, अच्छी प्रार्थना बच्चों ने की, लेकिन प्रभु हमें कोई बड़ाई, हमें कोई तारीफ नहीं चाहिए। ये जो भी हुनर है एवं तेरी महिमा के लिए, तेरा नाम ऊंचा होना चाहिए परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है। गिविंग ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू माय गॉड, इन जीसस नेम, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। अब सबको नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? शाम के समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें इकट्ठा किया। आई एम वेरी हैप्पी। प्रभु के बेटे राहुल और अर्चना ने अच्छा लीड किया। अब मैं लीडर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अच्छा बच्चों को प्रैक्टिस कराया। आई थिंक शायद पूनम ने कभी इंग्लिश में इतना प्रेयर नहीं किया, लेकिन जब वो इंग्लिश में प्रेयर किया, सुनने से लगेगा कि पूनम शी इज एक्सपीरियंस वुमन, बहुत दिनों से वो प्रेयर करता है। तो प्रभु की महिमा हो। आप यीशु के लिए जो मेहनत करते हैं उसका ब्लेसिंग प्रभु देगा, है ना? आइए बच्चों, प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ऐसे हमारे यूथ नाइट में आप जुड़े रहिए। आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस आराधना में आप लेकर आइए। एक साथ जवानों के उस दर्शनों में हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आगे के समय हमारा पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम डालेंगे। हर यूथ नाइट आराधना में याद रखना, एक बाइबल आपको कैरी करना है, एक छोटा सा डायरी और एक पेन आपको कैरी करना है। हर दिन नहीं, लेकिन जिस दिन यूथ नाइट होगा
यस, संडे आराधना में, फ्राइडे आराधना में आप कैरी कर सकते हैं, जरूर करना है। लेकिन यूथ नाइट जब प्रार्थना होगा उस दिन भी बाइबल, नोटबुक और एक पेन के साथ आप इधर आना है। आमेन। यूथ नाइट के दिनों में प्रभु के वचन को हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में और गहराई में हम जाएंगे। आमेन। यीशु मसीह ने कहा है, तुम पूरे दिल से मेरे वचन को मानो, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। आमेन। आइए बच्चों, आगे के समय अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम डालें। आज इस शाम की आराधना में आप सब यहां आए हैं और मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोग प्रभु की सेवकाई करने में बहुत दिलचस्पी थे। आमेन, है ना? सही बात है। शायद कुछ बच्चे हैं जो अपने बहन का फोर्स में आया हो, है ना? कुछ बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का फोर्स में आया हो। कुछ बच्चे हैं शायद कुछ साइकिल दिला दो या वीडियो गेम दिला ददो करके, है ना, पेरेंट्स को टॉर्चर करके आया होगा। लेकिन आप में से आई थिंक सो 75-80% या 90% बच्चे हैं जो भी आज इधर आए हैं। मुझे विश्वास है आप लोग प्रभु की सेवकाई को बहुत पसंद करते हैं। यू लाइक टू सर्व गॉड। आपको प्रभु की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप आए, मैं विश्वास करता हूं। और आज इस शाम के समय प्रभु की सेवकाई से रिलेटेड कुछ वचन मैं आपको देना चाहता हूं। आमेन। हम प्रभु की सेवा करते हैं, है ना? हमारा वुमेन यूथ डायरेक्टर संजना बोलेंगे आपको म्यूजिक सिस्टम बराबर करना है, आपको कुर्सी बराबर डालना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस हिसाब से हम वो सेवा करते जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यीशु मसीह सेवा के बारे में क्या समझाते हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आमेन। यीशु मसीह ने सेवा को किस नजरिए से देखा? यीशु मसीह सामने वाले के दर्द को कैसे समझते हैं, आज वो एक वचन से हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना किसी दास को फॉलो करने के लिए नहीं, किसी इंसान को फॉलो करने के लिए नहीं। शायद मेरे अंदर का कुछ क्वालिटी आपको अच्छा लगता होगा, है ना? अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता होगा। लेकिन बच्चों, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो ये बाइबल का खिलाफ। यस, अच्छी आदतें हम लेना है। सुष्मिता का प्रार्थना जीवन अच्छा है, वो कैरेक्टर हम लेना है। पूनम का बाइबल रीडिंग लाइफ अच्छा है, वो कैरेक्टर हम लेना है। लेकिन फॉलो सिर्फ एक चीज को करना है, दैट इज आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आजकल का जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंसान दास के पीछे भागता है। वो दास जो कहता है, अच्छी बात है दास को फॉलो करना, लेकिन तकलीफ तब हो जाता है जब वो इंसान प्रभु से बढ़कर उस दास को मानता है। वो गलत बात है। हम अच्छा क्वालिटी हर व्यक्ति से लेना है, लेकिन हमारा फॉलोइंग सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। हम यीशु के फॉलोवर्स होना चाहिए। और बच्चों, आज मैं जानता हूँ आप सभी को सेवा बहुत पसंद है, दिल से आप प्रभु का सेवा करते हैं। कुछ बच्चे हमारे आराधना में हमेशा यहाँ बैठकर सेवा करते हैं, कुछ बच्चे दूर दूर आकर सेवा करते हैं। इसलिए आज सेवा के विषय में कुछ 4 आशीषित पॉइंट्स हम सीखेंगे। हालेलुया। और आज वो पॉइंट्स हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को सीखने वाले। किस तरह यीशु का वो स्वभाव था, किस तरह यीशु का वो प्यार था, किस तरह यीशु ने बातें किया,
यीशु का क्या सोच था सेवकाई में, हम वो सीखेंगे। आमेन। तो जो भी नोटबुक लाए हैं, दे कैन राइट द टाइटल, व्हाट्स द की टू सर्विंग अदर्स द वे जीसस डिड। हालेलुया। अगर आप सब नोटबुक लाए हैं या नहीं लाए हैं चलेगा, लाइव देखकर वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। व्हाट्स द की टू सर्विंग अदर्स द वे जीसस डिड। लिखने वाले अगर पॉइंट्स टीवी पर आएंगे तो बच्चों को आसानी होगा। आमेन। व्हाट्स द की टू सर्विंग अदर्स द वे जीसस डिड। इसका मतलब है 4 चाबियां आज पवित्र आत्मा हमें देना चाहते हैं। आमेन। कितने लोगों को प्रभु का सेवा पसंद है? प्रभु का सेवा अच्छा लगता है? आमेन। तो आपके इस पसंद में, आपकी इस इच्छा में आज पवित्र आत्मा 4 चाबियां आपको देना चाहता है। आमेन। वो 4 चाबियां आज प्रभु आपको देगा। उस चाबी को मानकर, उस चाबी के अनुशासन में चलकर आपकी सेवकाई में कभी ना देखा हुआ आशीष का दरवाजा खुलते हुए आप देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे बच्चों, हम सबको सेवा करना बहुत पसंद है। दिल से हमारे माता पिता प्रभु के दास कहते हैं, दिल से प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैंने ज्यादातर गौर किया है, सेवा करते करते जब कोई हमारा बुराई करता है, डिस्करेज करता है, तो हमारा मन पूरी तरह टूट जाता है ना। अभी उदाहरण, अर्चना ये स्टेज अच्छे से क्लीन कर रहे, कोई व्यक्ति बोलेगा ये लड़की दिखावा कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ जलने वाले लोग होते हैं, ये लड़की दिखावा कर रहे, या कुछ बुरा भला कहेंगे, तो जब वो बात हमारे कानों तलक आ जाता है तो प्रभु का सेवा करना हमें अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा हम और नेगेटिव हो जाते हैं। अभी यूथ कैंप का भी समय था, 100 बच्चे आए थे, बहुत एंजॉय किया हम सब ने। तो उस यूथ कैंप के समय हमारे चर्च में एक लेडी किसी से बोल रहे, अपने बच्चों को यूथ कैंप मत भेजो। उसमें से कुछ बच्चे बुराई करते हैं, कुछ बच्चे दोष लगाते हैं। ये गलत बात है। मैं यही सोचता हूं कि ये बहुत गलत बात है। आमेन। ये सब बातें सुनकर हम सेवा से दूर हो जाते हैं, या हमारे बड़े लोग हमें सेवा से दूर करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा आपको देना चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। हमेशा यही विश्वास करना, इंसान मुझे ना जाने या ना जाने, मेरा यीशु मुझे जानता है, इससे बढ़कर और मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इससे बढ़कर मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सेवा करना है तो उस खुदा के लिए सेवा करना है। खुशी, ये प्रभु का वचन है तो बी सीरियस। हाँ, डैनियला उधर मस्ती करता रहेगा, उसका काम ही वही है। वो सुबह उठकर यही सोचता है क्या तोड़ू, है ना। पापा बहुत फ्री लग रहे हैं, उन्हें टेंशन देना पड़ेगा। ओके, बच्चे मस्ती करेंगे, लेकिन हमें प्रभु का वचन सुनना है। बच्चों, आपके जैसे बहुत जवान हैं जो ड्रग्स एडिक्ट हैं, जो उनके रिलेशनशिप से डिप्रेस हैं, जो उनके पेरेंट्स से डिप्रेस है, उनके एजुकेशन फेलियर से डिप्रेस है। अक्सर मैं बैंड्रा में, अंधेरी में, यूथ चर्चेस में, बड़े चर्चेस में जाता हूँ तो नए नए बच्चे मुझे बोलते हैं, पास्टर जी आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। जो गाइडेंस आप दिया या पापा देते हैं, वो गाइडेंस हमें पहले मिला होता तो शायद अल्कोहल में मैं जाता नहीं था, वो नशे में मैं जाता नहीं था, गलत संगति में मैं जाता नहीं था। इसलिए बच्चों, अगर वचन आप सुन रहे हैं,
अगर आप इस मंदिर में बैठे हैं, प्रभु का वचन आपके कानों तलक आ रहा है, तो याद रखना, यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप बहुत भाग्यवान हैं। आमेन। इस दुनिया में हमारे माता पिता से बढ़कर कोई हमें रास्ता नहीं दिखाएगा, लेकिन याद रखना, माता पिता के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति मेरा आशीष देखना चाहता है, मुझे ऊंचा देखना चाहता है, तो आपसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये हमारा बड़ाई नहीं, लेकिन याद रखना, हमारे माता पिता के अलावा भी कोई दास हो, कोई अभिषक्त अगर हमें एक रास्ता दिखा रहा है, तो यीशु का बड़ा दया है हमारे ऊपर। यीशु का बड़ा दया है हमारे ऊपर। हालेलुया। इसलिए जब भी आराधना का समय हो, अच्छा मन लगा कि आराधना करना है। आजू बाजू में जो भी चीज चले, इसका मोबाइल फोन बजेगा या कुछ भी एक्टिविटी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि याद रखना, इस आराधना में यीशु मसीह हम सबको देख रहे हैं। यीशु मसीह जानते हैं आपका नाम क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका हाइट वेट क्या है। आमेन। और यहाँ बैठकर हमें यीशु को आराधना देना। हालेलुया। यहाँ बैठकर जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारे शरीर से वो आराधना को यीशु स्वीकार करेगा और वो खुदा स्वर्ग से हमें ब्लेस करेगा। आमेन। 1.5 घंटे का आराधना है तो 1.5 घंटा सीरियसली बैठना है। 3 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, सीरियसली बैठना है। आमेन। क्योंकि याद रखना, इधर उधर ध्यान जाता है तो मुझे पसंद नहीं आता। आप सोचो यीशु मसीह को कैसा लगता हो। प्रभु भी सोचते होंगे, पूनम तेरे लिए बहुत कोड़े में खाया, तेरे लिए बहुत खून में बहाया, मैं चाहता हूं तू 1.5 घंटा मेरी आराधना में ध्यान दे। हाँ बच्चों, कोई भी हो, आज से एक ही जन को नहीं, हर एक बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आराधना में अच्छा ध्यान देना है। आप अपना मोबाइल साइलेंट कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, एकदम वो 1.5 घंटा प्रभु की आराधना, क्योंकि इस आराधना से बाहर हम जाएगा तो ये समय हमें वापस मिलेगा नहीं। सो गिव योर बेस्ट टू गॉड, है ना। मेरे पिता हमेशा कहते हैं, एनविन, गुड, बेटर, एक्सीलेंट आपके सामने होगा। तो उन तीनों में से अगर एक्सीलेंट तुम दे सकते हो तो गुड देने का जरूरत नहीं, नाइस देने का जरूरत नहीं, एक्सीलेंट देने का कोशिश करो। हालेलुया। यही है प्रभु की सेवकाई का एक प्रोसेस। अगर आपके सामने गुड और एक्सीलेंट ऑप्शन है, संकेंदु अच्छा भी कर सकता है, संकेंदु अपने गाने में अच्छा भी कर सकता है, बेस्ट भी कर सकता है, तो प्रभु बोल रहे, बेटा तू अच्छा मत कर, तू अपना बेस्ट प्रभु यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। यही एक इंटेंशन हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ, प्रभु साधारण नहीं, अच्छा नहीं, बहुत हटके, बहुत लाजवाब तरीके से मुझे तेरा सेवा करना है। जब भी आपको मौका मिले, क्या दोगे, गुड दोगे या एक्सीलेंट दोगे? आमेन। एक्सीलेंट देना, क्योंकि वो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन के पुस्तक से आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई के इंपॉर्टेंस को जानेंगे। और गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ने के पहले प्यारे बच्चों, हम सीखेंगे ये पुस्तक कभी लिखा गया, इस पुस्तक का लेखक कौन है, किस जगह में, कैसे जगह में, किस मकसद से ये पुस्तक लिखा गया, उसे हम सीखेंगे। बहुत खास आप लोगों के लिए बहुत हिस्ट्री, बहुत चरित्र इधर उधर से पढ़कर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो मिलकर प्रभु के वचन को हम सीखेंगे। आमेन। मैंने जैसे कहा, हमें अच्छा नहीं देना, वी हैव टू गिव एक्सीलेंट टू गॉड। यानी सिर्फ जॉन पुस्तक खोलना नहीं है,
हमें जानना है वो पुस्तक कभी लिखा गया, वो पुस्तक कौन से मकसद से लिखा गया, उस लिखने का पर्पस क्या था। आमेन, हालेलुया। दिल खोलकर आमीन बोलो, है ना। अमूल भाई फाइन नहीं लेगा। हाँ, अगर आमीन धीरे बोलेगा तो अमूल भाई फाइन लेगा। हाँ, आमीन अच्छा बोला तो फाइन नहीं लिया जाएगा। आमीन। तो बच्चों, द गॉस्पेल ऑफ जॉन AD 90 में लिखा गया था। द गॉस्पेल ऑफ जॉन AD 90 में लिखा गया था। AD यानी एनो डोमिनी, यानी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और जी उठने के बाद ये पुस्तक AD 90 में प्रभु के अभिषक्ति दास द ऑथर जॉन ने लिखा था। और याद रखना, अक्सर हर बच्चों का कंफ्यूजन होता है, जॉन मीन्स जॉन द बैप्टिस्ट। जिस यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उस व्यक्ति ने ये बुक लिखा है, तो ये गलत है। कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अगर ये गलत फहमी था तो आज उसे करेक्ट करने का मौका प्रभु दे रहे। तो द ऑथर इज नॉट द जॉन द बैप्टिस्ट, द ऑथर इज द जॉन द बिलव्ड डिसाइपल ऑफ जीसस। यानी एक और यूहन्ना था, वो यीशु के 12 चेलों में था, और बाइबल में लिखा है यीशु का सबसे प्यारा चेला। प्रेज द लॉर्ड, यीशु का सबसे प्यारा चेला। आमेन। अब सबको भी यीशु का प्यारा बेटा बनना है। ओके, यीशु मसीह जहां जाने बोलेंगे वहां जाना है। यीशु मसीह बोलेंगे स्नेहा 2 बार प्रेयर करो, स्नेहा नहीं करेगा तो यीशु मसीह बोलेंगे स्नेहा मेरी प्यारी बेटी नहीं है। आमेन। आप देखो, दुनिया बनाने वाले यीशु मसीह का प्यारा शिष्य बोलेगा तो कितनी बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। अगर मैं बोलूंगा कि खुशी मेरा प्यारी बच्ची, और अगर यीशु मसीह स्वयं प्रकट होकर बोलेंगे खुशी मेरा प्यारी बच्ची है, तो किसके शब्द में ज्यादा वैल्यू है? जीसस के शब्द में ज्यादा वैल्यू है। आप सोचो, दुनिया बनाने वाले, है ना, इस मंदिर को बनाने वाले यीशु का सबसे मनपसंद चेला जॉन। अगर यीशु का सबसे मनपसंद था, यानी इतना प्योर था जॉन, इतना डिसिप्लिन, इतना शुद्ध पवित्र, बहुत अच्छा स्वभाव वाला था यूहन्ना। आमेन। तो याद रखना, ये पुस्तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं, यूहन्ना जो यीशु का शिष्य था उसने ये पुस्तक लिखा। और यूहन्ना का एक भाई भी था जिसका नाम है जेम्स। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 21 में लिखा है, यूहन्ना का एक भाई था, उसका नाम था जेम्स। जेम्स को हिंदी में क्या कहेंगे? एनीवन? याकूब। वेरी गुड। तो याद रखना, यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना ने ये सुसमाचार लिखा है। उसका एक भाई था, उसका नाम था याकूब, दैट मीन्स जेम्स। बच्चों, यूहन्ना ने सिर्फ एक ही पुस्तक नहीं लिखा, इस पुस्तक के साथ यूहन्ना ने और 4 पुस्तक लिखा बाइबल में। और वो पुस्तक कोई बता सकता है? एनीवन? हाँ, रेवलेशन। ब्राइन के लिए ताली बजाओ। आमेन। वेरी गुड ब्राइन। द बुक ऑफ रेवलेशन किसने लिखा है? द अपोस्टल जॉन। जॉन ने द बुक ऑफ रेवलेशन लिखा है, ये आप याद रखना। उसके बाद और क्या लिखा? एनीवन? बहुत सिंपल है। जॉन 1 जॉन नहीं, 1 जॉन 2 जॉन। किसने पहले बोला? पूजा दीदी। वेरी गुड पूजा दीदी। तो द बुक जॉन, 1 जॉन, 2 जॉन और 3 जॉन का जो बुक है वो भी प्रभु के चेले यूहन्ना ने लिखा है। हालेलुया। तो टोटल बाइबल में कितना बुक जॉन ने लिखा? 5 बुक्स, है ना।
फर्स्ट इज द गॉस्पेल ऑफ जॉन, सेकेंड दूसरा द लेटर्स ऑफ जॉन, और तीसरा द रेवलेशन ऑफ जॉन। तो बच्चों, 4 सुसमाचार का पुस्तक जो नए नियम में है उसको कहते हैं द गॉस्पेल ऑफ जॉन। दूसरे पुस्तक को कह सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क और लूक। उसके बाद लेटर्स शुरू होता है, खत शुरू होता है। तो जब पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना या तीसरा यूहन्ना आप देखेंगे तो उसे गॉस्पेल ऑफ फर्स्ट जॉन नहीं कहना, उसे कहते हैं द लेटर ऑफ फर्स्ट जॉन, आमेन, द लेटर ऑफ सेकंड जॉन। खत यानी यूहन्ना ने कलीसिया के लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, कलीसिया के लोगों को एक अच्छा दर्शन, उन्हें विश्वास में जगाने के लिए, आने वाले विपत्तियों का सामना कर कर यीशु मसीह के नाम में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने ये 3 खत लिखा, और वो खत है फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन और थर्ड जॉन, आमेन। उस जमाने में माइक सिस्टम नहीं था, टीवी नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो प्रभु के अभिषेक क्या करते थे, वो चर्चेस के लिए खत लिखते थे, आमेन। हमारे अंडर में भी काफी ब्रांचेस हैं, उड़ीसा में, गुजरात में, केरला में, लेकिन आजकल के समय में एवरीथिंग इज सिंपल। आज इस लाइव को हमारे सब ब्रांचेस के यूथ देख रहे हैं, आमेन। लेकिन उन समय 2000 साल पहले, आमेन, 1800 साल पहले ये सब सिस्टम नहीं था। प्रभु के अभिषेक क्या करते थे, दे यूज्ड टू राइट लेटर्स, खत लिखकर कलीसिया में वो भेजते थे। इसलिए बच्चों याद रखना, पुराने समय में अभिषक्तियों ने कितना मेहनत किया है ना पूनम। आजकल सब आसान है, स्टेशन से 2 टिकट लो, ट्रेन से हम आ जाता है, हाँ कुर्सी लगाकर हम बैठ जाता है। जब भी प्रीचिंग सुनना है, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, हमारे पापा प्रचार करते हैं, एल्विन ब्रदर प्रचार करते हैं। आज यूथ नाइट में भी और हमें सीखने का मौका मिलेगा। नाउ अ डेज एवरीथिंग इज सिंपल, बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों याद रखना, जब यूहन्ना सेवा कर रहे थे उन दिनों में वो बहुत से लोग इस अभिषक्ति दास को मार डालना चाहते थे, लेकिन उस दर्द सहकर, कोड़े सहकर भी, लहू बहते हुए उन्होंने खत लिखा और कलीसिया को प्रोत्साहित किया, आमेन। सो दैट मीन्स वी हैव टू रेस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम आदर देना, आमेन। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे पापा के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं। क्यों मैं उन्हें उतना आदर देता हूँ? क्योंकि उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए, आमेन, इस मंदिर को बनाने के लिए हमारे पापा ने बहुत दर्द सहा, बहुत दर्द सहा। महीनों भर पापा भूखे थे, मम्मी भूखे थे। इसलिए आज भी एक छोटे बच्चे जैसा मैं पापा की हर बात सुनकर प्रभु का सेवकाई करता हूँ। आज भी मेरे वाइफ के सामने पापा मुझे डांटते हैं, मुझे शर्म नहीं आता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम, हालेलुया। इसी तरह बच्चों, वी शुड रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना ने बहुत दर्द सहकर ये गॉस्पेल लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को क्यों इस्तेमाल किया? ताकि वो पवित्र पुस्तक सुष्मिता के हाथों में पहुंच सके, ताकि वो पवित्र पुस्तक सांझ के हाथों में पहुंच सके, आमेन। तो यानी शायद आप 18 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, लेकिन इस दुनिया बनने के पहले ही प्रभु ने सोच रखा था कि एक दिन पूनम प्रभु को स्वीकार करेगा और उसके हाथों में पवित्र पुस्तक में पहुंचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओह, ये वचन सुन के, है ना, ओह, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में। समटाइम आई फील दैट आई एम नॉट वर्दी, मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, लेकिन बच्चों हम सीरियस रहना है। प्रभु के वचन बड़ा दर्द सहकर, जान गवाकर ये बाइबल हम तक पहुंचा है। 500 साल पहले ये पुस्तक खरीदना आसान नहीं था, 1000 साल पहले ये पुस्तक पढ़ना आसान नहीं था।
इसलिए अगर ये पुस्तक आपको मिला है, पापा मम्मी अगर खरीद के दिया, रिस्पेक्टफुली इस बुक को पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन, प्रभु के प्रिय शिष्य जॉन ने कितना बुक लिखा? सांझ 5 बुक लिखा। ओके, तो ये हमेशा याद रखा। यूहन्ना ने कितना बुक लिखा? यूहन्ना ने नहीं लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लिखा, ऐसा सब नहीं बोलना है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल नॉलेज है। कोई पूछेगा संजना जॉन कब लिखा गया, बोलना है 80-90। ओह संजना आ जाओ, अमेरिका आ जाओ, है ना, प्रोफेसर बन जाओ। तो हमको ये इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, हमारा बेस हमको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। तो पहला ये बुक कब लिखा गया? 80-90 में। इसका ऑथर कौन है? या जॉन द डिसाइपल। यूहन्ना का एक भाई था, उसका नाम जेम्स। चरित्र बताती है कि यूहन्ना 100 साल की उम्र में गुजर गया था। वो भी आप लिख सकते हैं, 100 साल प्रभु का अभिषिक्त यूहन्ना जीवित था। बड़ा ही मन लगाकर अपना पूरे सामर्थ्य से प्रभु के मार्गदर्शन से वो अभिषक्ति ने सेवा की। और याद रखना, यूहन्ना का जो पुस्तक है, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, ये पुस्तक का एक मकसद था। आमेन। मैथ्यू ने जब सुसमाचार लिखा, उसने उस सुसमाचार को एक थीम दिया था। इसी तरह कुछ सुसमाचार के पुस्तक में यीशु को राजा का थीम दिया है, कुछ सुसमाचार में यीशु को पाप क्षमा करने वाला थीम दिया है। उसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन में थीम दिया है दैट जीसस क्राइस्ट एज अवर गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह ही एवं खुदा है, यीशु मसीह ही हमारा खुदा है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इस अभिषक्ति दास का थीम था कि यीशु हमारा खुदा है। उसके जैसा और कोई खुदा नहीं, उससे बढ़कर और कोई खुदा नहीं। वही हमारा खुदा है, वो आदि और अंत है। वो हमारे भविष्य को संभालेगा, वो हमें एक आशीषित लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। वो एक थीम मन में रखकर इस पवित्र पुस्तक को आप पढ़ना है। और ये बुक पूरे बाइबल में 43 बुक है। आमेन। बाइबल में कितना बुक्स है? 66। हाँ, तो आज ही अभी आप लोग प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, तो बाइबल में कितना बुक्स है? ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में कितना बुक्स है? अब वो बुक्स के नाम वो सब याद करना है। ओके, क्योंकि हमें धीरे धीरे अपने बेस को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो याद रखना, द गॉस्पेल ऑफ जॉन इज द 43rd बुक ऑफ द बाइबल। वो एक 43rd बुक है। उस पुस्तक के अंदर 21 अध्याय हैं और 879 वचन है। गॉस्पेल ऑफ जॉन बुक 43 बुक है, उसके अंदर 21 चैप्टर है और 879 वचन है। ये सब जनरल नॉलेज आप कलेक्ट करने का है ना। और मौका मिले तो फाड़ के बोलना है, सामने वाला आदमी डरना चाहिए। सही बात है कि? आइए बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएंगे। तो याद रखना, यूहन्ना के पुस्तक के बारे में काफी जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। आइए अभी प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। जैसे मैंने कहा, व्हाट्स द की टू सर्विंग अदर्स द वे जीसस डिड। यीशु मसीह ने जिस तरह सेवकाई किया, वो यीशु मसीह का आशीष क्या था, वो खुदा का योजना क्या था सेवकाई। आमेन। आज एल्विन ब्रदर का एक्सपीरियंस नहीं है ना, आज किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह का एक्सपीरियंस है। वो सेवा का क्या वैल्यू है, वो सेवा का क्या महत्व है, आज हम पढ़ेंगे। यस, गॉस्पेल ऑफ जॉन
chapter 13, verse 12, 13, 14 and 15. यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13 के 16वीं आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़े। Then he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, Amen. you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. हालेलुया। Hallelujah. बच्चों, इस वचन में हम देख सकते हैं हमें बनाने वाले यीशु, हमारे खुदा, तीसरे दिन जी उठने वाले यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अपने शिष्य का पाँव धो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने चेलों का पाँव धो रहे हैं। आमेन। और यीशु मसीह ने वो सेवा करते करते अपने शिष्यों से कहा कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम्हें भी करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा मैं करता हूं वैसा तुम्हें भी करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह चाहते हैं हम उस खुदा की तरह सेवा करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गरीबों के दर्द को समझें, अनाथ बच्चों के दर्द को समझे। प्रभु यीशु मसीह के उस कलीसिया के दर्शन को पापा जो दर्शन लेकर चल रहे हैं इस गॉस्पेल सेंटर मुंबई में, लोगों को छुटकारा, लोगों के जीवन में समाधान देने का जो दर्शन है, यीशु मसीह चाहते हैं खाली इधर बैठकर वचन सुनना नहीं, खाली इधर बैठकर बस प्रभु की बातें सुनना नहीं। प्रभु चाहते हैं जो मैंने किया मैं चाहता हूं वो तुम करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह वो चीज चाहते हैं? गलातियों के पत्री को खोले, द बुक ऑफ गलाथियंस चैप्टर 6 वर्स 2। द बुक ऑफ गलाथियंस चैप्टर 6 वर्स 2। Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. हालेलुया। Hallelujah. इस वचन में क्या लिखा है? एक दूसरे के बोझ को उठाने का कोशिश करो। एक दूसरे के बोझ को उठाने का कोशिश करो, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह का नियम है। यही प्रभु यीशु मसीह का कानून है जो पवित्र वचन में लिखा है। प्यारे बच्चों, अगर यही प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है तो दूसरे का बोझ उठाने में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष करेंगे। हालेलुया। आज हजारों लोगों को हमने क्रिसमस में साड़ी क्यों दिया? अभी नया साल शुरू हो रहे, हमारे जो ऑर्फन बच्चे हैं उन्हें बुक्स खरीद के देना है, बैग्स खरीद के देना है, उसका क्या जरूरत? क्योंकि ये प्रभु के वचन में लिखा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम बोझ उठाने वाला बच्चा बनना है, तुम बोझ उठाने वाला बच्चा बनना है। आज प्रभु आपको बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, आज प्रभु आपको एक बड़े सीए लाइन में बढ़ाएंगे, बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। लेकिन यीशु चाहते हैं बेटा तू अपने कमाई से घर बनाओ, तू अपने कमाई से गाड़ी खरीदो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाहता हूं तू मेरी सेवा करना है। तू अपने परिवार को बनाते बनाते मेरे बोझ को भी उठाना है। हालेलुया। ये दुनिया अपनी रोटी का फिक्र कर दे। ये दुनिया सोचते हैं कि उस गरीब को मैं नहीं खिलाऊंगा, मुझे 4 रोटी खाना है, मैं उसे खिलाऊंगा नहीं, मैं उसका पेट भरूंगा नहीं। लेकिन यीशु चाहते हैं तू थोड़ा कम खा, या तू अगर थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ेगा चलेगा, लेकिन तेरे हाथों से तू किसी गरीब का भला कर रहा है, किसी अनाथ का भला कर रहा है, तो यीशु की आज्ञा में चल रहा है, प्रभु हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। यस प्रियजनों, प्रभु की सेवकाई वो यीशु मसीह का एक आज्ञा है। यीशु ने हमें चुना दूसरों के बोझ को उठाने के लिए। बेसहारा दिखेगा तो कर सकते हो तो जरूर हम उस व्यक्ति का बोझ को उठाना है। वचन में लिखा है दैट इज द लॉ ऑफ गॉड। हालेलुया। यस, यूहन्ना के पुस्तक उसके 15 के 12 को पढ़े।
Hallelujah. 15 verse 12. My command is this: love each other as I have loved you. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह का आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। बच्चों, मैंने पहले जैसे कहा, कभी कभी हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते करते ऐसे बहुत से कुछ लोग हैं जो हमसे जलता है, जो हमें नीचा दिखाने का कोशिश करता, उसी कारण हमें सेवा में मन नहीं लगता। लेकिन प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तुम एक दूसरे से प्यार करो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। हमेशा याद रखना, जीवन में बहुत नफरत करने का मन होगा एक दूसरे से, जीवन में उस व्यक्ति से बहुत नफरत करने का इच्छा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या दिया? बोझ को उठाने वाला तुम्हें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे से प्यार करने वाला तुम्हें बनना है, क्योंकि यही प्रभु का आज्ञा है। क्योंकि जिस तरह यीशु ने हमसे प्यार किया, हम भी अपने दुश्मनों से प्यार करना। हालेलुया। यस प्यारे बच्चों, हमारा पाप क्षमा होने का कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं था, हम आज भी गलती करते। आमीन। ऐसा इस प्रेयर हॉल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, मुझे भी मिलाकर, जो पूरी तरह पवित्र हो, बिना कोई गलती के अपना जीवन जीता हो, ऐसा हम में से कोई नहीं। हम सब कुछ ना कुछ गलती करते हैं। कभी कभी हम फट जाते हैं, है ना, कभी कभी हम पछताते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा सेवा करो, एक दूसरे के बोझ को उठाओ, जिस तरह मैंने प्यार किया तुम भी प्यार करना। इसलिए बच्चों, ज्यादा दुश्मनों की ओर जाना नहीं। यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं। प्रभु की सेवा करते करते बहुत निंदाएं लोग करेंगे, प्रभु की सेवा करते करते बहुत नीचा लोग दिखाएंगे, लेकिन याद रखना इस वचन को, जिस तरह यीशु ने उस क्रूस पर अपना खून बहाते बहाते मुझसे प्यार किया, उसी तरह मैं भी अपने लोगों से प्यार करूं। मैं हमेशा सोचता था प्रभु यीशु मसीह ने कितना कुछ सहा। आमीन। बाइबल में लिखा है यीशु जानते थे कि मुझे कोड़े मार दिए जाएंगे, यीशु जानते थे मेरे हाथों में बड़ा खिल्ला ठोका जाएगा। प्रभु ने उस दर्द को जान लिया था, उस दर्द, वो दर्द यीशु के जीवन में आने वाला है, वो जान लिया था। तो भी प्रभु रुके नहीं, प्रभु आगे बढ़ते गए, क्योंकि यीशु चाहते थे कि संकेंदु के लहू का पाप क्षमा हो, आदित्य के लहू का पाप क्षमा हो। हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर यीशु ने हमारे लिए बड़ा दर्द सहा है, तो हम यीशु के उस सेवा को जारी रखना, हम यीशु मसीह के नाम से लोगों के बोझ को उठाना। हालेलुया। प्रभु का सेवा क्यों करना? क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है। दिस इज द लॉ ऑफ गॉड। कभी भी सेवा करने का मौका मिले, दिल खोलकर सेवा करना, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, और जो प्रभु के वचन में चलता है उसके जीवन में आशीष आता है। आज शैतान बहुत मौका देगा, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, घूमने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हर चीज में एक लिमिट होना चाहिए। लेकिन प्रभु की सेवकाई में कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, है ना। आज सुष्मिता, बहुत बच्चे तीनों सेक्शन बैठते हैं, मैं ये नहीं बोलता आ जाती है, तीनों सेक्शन बैठती है, कंटाल गया इसको देख के, मैं कभी नहीं बोलता, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आमीन। सुष्मिता चाहे तो स्पाइडरमैन का मूवी देखने जा सकता था, दोस्तों के साथ अच्छा होटल में खाना खाने जा सकता था। दोस्त बुलाते भी हो उसे, दोस्त ताने भी मारते हैं, है ना, बहुत भक्त हो गया, एंजल हो गया, देख देख 2 पंख भी निकल आया तुझे। लेकिन प्रभु का बच्चे लोग ये सब बातों में माइंड नहीं करना। आमीन। याद रखना बच्चों, इस दुनिया में लोगों को बुरे लोगों से एलर्जी नहीं है, लोगों को अच्छे लोगों से एलर्जी। हालेलुया। यीशु मसीह भी अच्छे ही थे, पर उस खुदा के साथ क्या किया? उस खुदा को क्रूस पर लटका दी। उस खुदा का कोई गुनाह नहीं था, तो भी उन्हें कोड़े मारे। याद रखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को दबाते,
इसलिए कोई उम्मीद रखकर मैं अच्छा करूंगा तो सामने से भी अच्छा आना चाहिए, ये उम्मीद रखकर सेवा नहीं करना। इसलिए सेवा करो क्योंकि ये प्रभु का वचन है। जिस तरह यीशु मसीह ने पाँव धोने का सेवा किया, मुझे भी यीशु का सेवा करना। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करना। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति का तारीफ सुनने के लिए, किसी का वाहवाही सुनने के लिए या कुछ अपने आप को प्रेटेंड करने के लिए प्रभु का सेवा नहीं करना। हालेलुया। दिल से प्रभु का सेवा करना है, ये प्रभु का आज्ञा है। यीशु मसीह ने इसी मकसद के लिए मुझे चुना है। खुदा ने अपना जान गवाया, खुदा तीसरे दिन जी उठे। वो जी उठने का मकसद मेरे लिए था ताकि मैं यीशु का काम जारी कर सकूं। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। तो बच्चों, पहला पॉइंट जो इस वचन में है वो है सर्व इवन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। पहला पॉइंट है सर्व इवन व्हेन यू आर गोइंग टू अ डिफिकल्ट टाइम। यस, उस 13वें अध्याय के पहले वचन को हम पढ़े। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 1। It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. बच्चों, इस वचन में जरा देखिए। Having loved his own who were in the world, he loved them Yes, to the thank end. you. बच्चों, इस वचन में लिखा है सेवा करते करते जब यीशु मसीह शिष्यों के पांव को धोने जा रहे थे, जब यीशु मसीह एक इंसानियत का बड़ा उदाहरण बनने जा रहे थे, पहले वचन में क्या लिखा? ही न्यू, खुदा जानते थे कि कुछ सिपाही मुझे क्रूस की ओर लेकर जाएंगे। खुदा जानते थे कि मेरे अपने मुझे धोखा देंगे। खुदा जानते थे मुझे कोड़े मार दिए जाएंगे, मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा। हालेलुया। वो दर्द आने वाला है, वो यीशु मसीह जानते थे। आमीन। अगर मैं राहुल से कहूँ, राहुल बेटा 2 घंटा इधर बैठो, 1 घंटे में एक पुलिस ऑफिसर आकर तुझे गोली मारेगा, है ना? राहुल बोलेगा भैया आपके लिए कुछ भी, आपके लिए एनीथिंग फॉर यू, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जब 55 मिनट्स हो जाएगा तो, है ना, राहुल डरने लगेगा, बेचैन होने लगेगा। अरे बाप रे, 5 मिनट के बाद हाँ मेरा खोपड़ी खोलने के लिए कोई आ रहा है। तो बच्चों, यीशु मसीह का जीवन देखो, वचन में क्या लिखा? He knew the suffering was coming. He knew that people will going to crucify me. People will going to hit me. कांटों का मुकुट पहनाकर मुझे आने वाले दिनों में दर्द मिलने वाला। ये कभी का समय है। यीशु मसीह जब पाँव धोने का पहले, सोचो हमारे खुदा कितने महान है। अगर यीशु के बदले हम होते, अगर हमको मालूम होता कि अभी हमें बलि चढ़ाने के लिए कुछ लोग आने वाले, तो हम पाँव धोने का सेवकाई करें, है ना? अभी समझो पूनम, उसके जीवन में बहुत कर्जा हो गए। लोगों ने कहा 2 दिन में पैसा रिटर्न नहीं, तुझे जेल में डालेंगे। उस समय मैं पूनम को बोलूंगा, पूनम अरे 2000 रुपया दे यार, कुछ गरीबों के लिए हम खाना बनाएगा। अरे बाप रे, पूनम बोलेगा भैया जाओ यहाँ से जाओ, जस्ट लीव, है ना, टॉक टू माई हैंड। पूनम बोलेगा ये बात, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यीशु मसीह का कंडीशन आप समझो, बाइबल में लिखा है ही न्यू, बड़ा दर्द आने जा रहा है, लहू बहने जा रहा है, कोड़े मिलने जा रहे हैं, मैं बलि होने जा रहा हूं। उसके बावजूद भी यीशु ने क्या किया? अपने चेलों का पाँव धोया, अपने चेलों का पाँव धोया, यीशु का सेवकाई किया। इसलिए प्यारे बच्चों, यही प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का पहला पॉइंट है। कितना भी जीवन में दुख परेशानी आए, तेरे शरीर से प्रभु का सेवा तू छोड़ना नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब तक शायद सेवा करते करते तुम्हारा मम्मी का विचार अंदर आता हो। अब तक सेवा करते करते तुम सोचते होंगे प्रभु एक नौकरी मुझे मिले, एक बढ़ोतरी मुझे मिले। लेकिन वचन में यीशु मसीह क्या बताते हैं? जब भी सेवा करो अपने आप को भूल जाना है, अपने तकलीफों को भूलकर प्रभु का सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये भूल जाना है कि मैं बीमार हूं, ये भूल जाना है कि मेरी मम्मी तकलीफ में, ये भूल जाना है कि मेरे पास नौकरी नहीं, ये भूल जाना है कि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट वीक है, मेरा साइंस सब्जेक्ट वीक है। यीशु मसीह ने भी ऐसे किया। यीशु मसीह ने अपने दुख को भुला दिया, आने वाला जो मुसीबत था। आमीन। यीशु जानते थे वो खिल्ला इधर लगने जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शरीर का फिक्र नहीं किया। He forget the pain about himself। खुदा के दर्द को उन्होंने भुला दिया, दिल से वो सेवा करने लगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपकी सेवा का पहला आशीष बिना कुछ सोचे, बिना आगे का सोचे, पूरा दिल देकर यीशु का सेवा तू करना है। हालेलुया। वो खुदा चमत्कारी परमेश्वर है, याद रखना। उस खुदा से वो खुदा जब छुए तो अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। Our God is a miracle worker। आपको नौकरी देने में प्रभु को कोई मुश्किल नहीं, आपको पास कराने में, आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में प्रभु को कोई मुश्किल नहीं। लेकिन यीशु यही चाहते हैं कि तू कुछ सोचकर प्रभु का सेवा नहीं करना। आमीन। सुष्मिता जब सेवा करेगा, यीशु चाहते हैं बेटी तू ये नहीं सोचना है कि मुझे एक अच्छा नौकरी मिलेगा इसलिए मैं प्रभु का सेवा करूं, है ना। संजना जब प्रभु का सेवा करेगा तो संजना ये नहीं सोचना है वो मुझे प्रभु नया घर देगा इसलिए मैं प्रभु का सेवा कर रही। बाइबल में क्या लिखा है? यू हैव टू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को तू भूल कर, आने वाले मुसीबतों को भूल कर दिल से प्रभु का सेवा करना है। हालेलुया। प्यारे बच्चों, ऐसा एक कैरेक्टर में तू सेवा करेगा तो तेरे जीवन में आशीष आए। अक्सर लोगों का सेवा करने के बाद उनको प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? आमीन। अक्सर लोगों का सेवा करने के बाद उन्हें बढ़ोतरी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग टेंशन लेकर सेवा करते हैं, कुछ प्रॉफिट पाने के लिए सेवा करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को, गॉड इज अवर बेस्ट एग्जाम्पल। बाइबल में लिखा है he knew the pain was coming, he knew the suffering was coming। उस दर्द आने वाला था तो भी यीशु ने क्या किया? अपने शिष्यों के पाँव को धोए। यीशु ने कहा मैंने जैसा किया है तुम्हें भी करना। इसलिए प्यारे बच्चों, दिल से सेवा करना, कुछ पाने के लिए टेंशन लेकर सेवा नहीं करना। अगर आप सोच सोच कर सेवा करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मम्मी डांटेगा, पति डांटेगा तो फिर सेवा करने का इच्छा नहीं होगा। मैं फोन करूंगा, मैं बोलूंगा स्नेहा आज नहीं आ रहे, नहीं भैया आज मूड नहीं है, आज मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, मैं बहुत अपसेट हूं। हाँ, यही यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। अपने बारे में कुछ ना सोचकर, अपने भविष्य के बारे में कुछ ना सोचकर जब भी सेवा करने आओ दिल से सेवा करना है। सेवा करते करते यही बोलना है कि मुझे प्रभु बनाएगा, मेरे भविष्य को प्रभु बदलेगा। ये एक पॉजिटिविटी और आशा लेकर प्रभु का सेवा करना है। इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, दिल से सेवा करो। अपने कमजोरी को भूल जाओ, अपने वीकनेस को भूल जाओ, अपने भविष्य की टेंशन को भूल जाओ, दिल से प्रभु का सेवा करना है। याद रखना ये प्रभु का आज्ञा है। कभी कभी लगता होगा भैया फोर्स कर रहे, मेरे पापा फोर्स कर रहे। नहीं, अगर आप फोर्स से आए हैं तो आप सेवा मत करो, लेकिन यीशु चाहते हैं तो दिल से आना है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है सर्व इवन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। तेरे मुश्किल के समय में भी अगर तू दिल से प्रभु का सेवा करेगा तो यीशु बहुत तुझे आशीष करेगा। हालेलुया। आगे का पॉइंट है सर्व नोइंग हु यू आर एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड।
सेवा करके जानो कि तू कौन है, किस खुदा ने तुझे चुना है, किस मकसद से इस मंदिर में तू आया है। यस बेटा, उसके तीसरे वचन को पढ़ो। Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God हाँ। and was returning to God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. इस वचन में क्या लिखा है? जीसस न्यू दैट ही इज द सन ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह जानते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं, मैं लोगों के उद्धार के लिए आया हूं, मेरा मकसद है कालवरी क्रूस पर बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठना। आमेन। प्यारे बच्चों, जब भी आप सेवा करोगे आपके मन में ये एक सोच होना चाहिए कि मुझे यीशु ने चुना है, मैं यीशु का सच्चा बेटा हूं, उस खुदा के स्वर्ग में मैं पहुंचूंगा, वो यीशु मेरे भविष्य को संभालेगा, मेरे जन्म से लेकर आने वाले भविष्य तक मेरा खुदा मुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। बाइबल आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत लोगों ने यीशु मसीह को ताने मारा। आमेन। आप जानते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा जन्मे गए और यीशु मसीह का जन्म मरियम के विवाह के पहले हुआ। हालेलुया। जब यहोवा ने मरियम से कहा पवित्र आत्मा से पुत्र जन्म होने वाला है, उसका नाम तो यीशु रखना, वो हमारा उद्धार करता होगा, तो मरियम के विश्वास को देखो बच्चों। मरियम ने ये नहीं कहा प्रभु मेरा शादी कुछ महीनों बाद है, शादी के पहले बच्चा हो जाएगा तो ये दुनिया मुझे कोस कर निंदा कर कर मार डाले, इसलिए प्रभु जी मेरा पहले विवाह होने दो, उसके बाद अगर पवित्र आत्मा से यीशु का जन्म होगा तो चलेगा, निंदाओं से मैं बच जाऊंगी। लेकिन प्यारे बच्चों, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मरियम ने कहा जो आप कहते हो मैं उस पर चलना चाहती हूँ। हालेलुया। यही है असली सेवा। जैसे मैंने कहा, विदाउट emptying ourselves, by emptying ourselves, by forgetting the future, you should serve the Lord. बिना अपने बारे में सोचे, बिना भविष्य की चिंता किए प्रभु का सेवा करने वाला ही असली आशीष का हकदार होता है। उसी तरह मरियम ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए हम मरियम को अच्छा आदर देना है। We should respect। एक बहुत बड़ा डिसीजन था। आई थिंक सो, शायद इवन नाउ शादी के पहले अगर एक लेडी प्रेग्नेंट हो गया तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, है ना। समाज बहुत उसका निंदा करेगा। एक अनरिस्पेक्टफुल सिचुएशन है वो सिचुएशन। अभी भी शायद कुछ कुछ कंट्रीज में ये होता होगा, लेकिन आज हमारे इंडियन कल्चर में देखा जाए तो शादी के पहले एक बेटी का बच्चा होना वो अच्छी बात नहीं, दुनिया उसे कोस के। तो प्यारे बच्चों, आप सोचिए मैरी के समय में मैरी ने कितना ताने सुना होगा। मैरी जानती थी कि बड़ा तकलीफ आने जा रहे, लोग मुझे छोड़ेगा नहीं, वे विचारी बोलकर, पराया बोलकर, नाजायज बोलकर बहुत सारी निंदा आने वाली है, लेकिन मरियम ने यीशु मसीह के लिए वो किया। मरियम ने स्वर्ग के पिता का बात सुना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बच्चों, सेवा करते समय जान लेना है कि यीशु ने मुझे चुना है। किस मकसद के लिए इस मंदिर में मैं आया हूं, किस मकसद से प्रभु मुझे आगे ले जाएगा, वो हमारे मन में हम विचार करना है। हालेलुया। आने वाले दिनों में कोई आकर ब्रायन को बोलेगा, ब्रायन पास्टर एल्विन अच्छा नहीं है, चर्च छोड़ दे, तो ब्रायन ऐसा कॉलर उठाना है, ब्रायन बोलना है यीशु लाया है मुझे। आमेन। किसी भैया के मार्गदर्शन से या किसी पप्पा के गाइडेंस से नहीं, मुझे खुदा ने इधर लाया है। खुदा बोलेगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे बच्चों, अगर ऐसा एक दर्शन, ऐसा एक मजबूत विश्वास आपके अंदर होगा तो शायद कुछ लोग ताने मारेंगे, वो आपके विश्वास को गिरा नहीं पाएगा। शायद कुछ लोग आपको डांटेंगे, वो आपके विश्वास को गिरा नहीं पाएगा। याद रखना, इसलिए संडे के समय छुट्टी नहीं लेना, समय पर आराधना करो। कितना भी थकावट हो, संडे प्रभु को समय देना, क्योंकि प्रभु ने इसी के लिए तुझे चुना है। हालेलुया। संडे अधिकतर लोग इसलिए छुट्टी लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यीशु ने उन्हें क्यों चुना है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? आई न्यू दैट आई एम द सन ऑफ गॉड। आई न्यू दैट फॉर अ पर्पस माय गॉड ब्रॉट मी हियर। मेरे यीशु ने एक योजना के लिए। हालेलुया। आज जो भी बच्चे यहाँ पियानो सीखते हैं, जो भी बच्चे गाना गाते हैं, जो भी बच्चों ने आज प्रेयर किया, इस मंदिर में सेवा किया, प्यारे बच्चों, एक मकसद के लिए यीशु ने आपको चुना है। हालेलुया। अगर प्रभु का इच्छा नहीं होता तो आज इस जमीन में आप पैर नहीं रखता था, आज इस ग्लास को आप उठा नहीं पाता था। लेकिन प्रभु ने एक मकसद को चुना है। याद रखना, वो मकसद सोच के प्रभु का सेवा आपको करना है। उसके बाद क्या है? सेट असाइड whatever could hold you back from the serving। यानी तेरे जीवन में प्रभु की सेवकाई में अड़चन लाने वाले चीज को तुझे प्रार्थना से लड़कर, उपवास से लड़कर उसे हटाना है। याद रखना, अगर तू प्रभु का सेवा करेगा तो तेरे जीवन में बहुत रुकावट आएगी, तेरे जीवन में बहुत परेशानी आएगी। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि सच्चा सेवकाई हमारे जीवन में होगा तो हमें बहुत कांटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, जो घर में सोना नहीं उधर चोर नहीं आता, लेकिन जिस घर में बहुत सोना है उधर चोर चोरी करने आता। उसी तरह आपके अंदर एक बहुत कीमती अभिषेक यीशु मसीह, वो बीमारी से मुक्ति दिलाने का एक अभिषेक यीशु मसीह ने आपको दिया है। शैतान जानता है वो अभिषेक इसके अंदर होगा तो ये यीशु का नाम बहुत ऊंचा करेगा। इसके घर में शैतानी जंजीरें टूटना शुरू हो जाएगी। इसलिए शैतान क्या करेगा? उस अभिषेक को चोरी करने का कोशिश करेगा। हालेलुया। यस, उसके 14 के वचन को पढ़े। Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. हालेलुया। बच्चों, इस वचन में जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तो इमोशनली शैतान यीशु मसीह को पीछे करने का बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दर्द को जीता और यीशु मसीह ने उस पाव धोने का सेवकाई शुरू की। आज प्रभु यही बताना चाहते हैं, जब तू प्रभु का काम करेगा तो शैतान बहुत रुकावट देगा, लेकिन उस रुकावट में तुझे रुकना नहीं है। क्या करना है? तुझे आगे बढ़ना है, तुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपके जीवन में आपके शेड्यूल को शैतान बिजी करेगा। पढ़ाई ज्यादा देकर, ऑफिस में ज्यादा काम देकर, प्रोजेक्ट्स देकर, हालेलुया, लेकिन हम प्रभु की सेवकाई के लिए आना है। आज संकेंदु मुझे बोला कि मेरा कीबोर्ड क्लास है, जरूरी मुझे जाना होगा, लेकिन मैंने कल बेटे से यही कहा, संकेंदु अभी जाने दो, लेकिन नेक्स्ट यूथ नाइट में कीबोर्ड क्लास थोड़ा शिफ्ट कर तो टाइम पे इधर आना है। हालेलुया। क्यों मैंने इसलिए कहा? क्योंकि ये हमारा डायरेक्टर संकेंदु को यीशु से प्यार है, लेकिन शैतान क्या कर रहा है? उसके ट्यूशंस को देखकर उसे बिजी कर रहा है। शैतान चाहता है कि वो बिजी हो जाए, आराधना मिस हो जाए। इसलिए मैंने उससे कहा, यूथ नाइट के समय तू अपने शेड्यूल को चेंज करना है, तू टाइम पे इधर आना है, क्योंकि यीशु तुझे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। संकेंदु के मन को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मुझे पता है शैतान इसे पीछे करना चाहता है।
क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा अभिषेक। हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, सेवा करते करते रुकावट आएगा, लेकिन एक्सक्यूज नहीं देना है, कोसना नहीं है, बुराई नहीं करना है। प्रार्थना कर कर उस चीज से लड़कर, उस चीज को हराकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना है। हालेलुया। बहुत बुराई करने वाले आएगा, बहुत दिल दुखाने वाला आएगा। शैतान बोलेगा, उधर जो उस यूथ में 2 जन तुझसे नफरत करते हैं, तू क्यों उस ग्रुप में जा? शैतान बोलेगा, ब्रायन अच्छा बजाता है, तुम उतना अच्छा नहीं बजा रहे हो, तुमको उतना पिकअप नहीं हो रहा है, तुम मत जाओ, मत प्ले करो। ऐसे शैतान बहुत बोलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखना, प्रभु का सेवकाई में बहुत रुकावट आएगा, लेकिन उस रुकावट से आप लड़ेगा तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हमेशा याद रखना, बड़े बड़े खड्डों से यीशु आपको बाहर निकालेंगे, लेकिन आप अगर सोफे में बैठे हो तो प्रभु आपको उठाएंगे नहीं। वो काम तुझे खुद ही करना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, सोफे में बैठे रहते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे खड़ा करो, प्रभु नीचे अमूल ताजा दूध लेने के लिए मुझे शक्ति दो, थम्सअप लेने के लिए मुझे शक्ति दो। प्रभु क्या बोल रहे हैं, तू खुद कर सकता है। आमीन। लोग बोलते हैं ना, बाइबल पढ़ने में बहुत नींद आता, लेकिन उधर अगर सलमान भाई का पिक्चर लगा दिया तो अरे नींद उधर ही 6 घंटा कैसे जाएगा पता नहीं। हालेलुया। यस बच्चों, शैतानी चीजों में बहुत मजा आएगा। बाइबल में लिखा है शैतानी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये मेरे जेब में है, ये आने वाले दिनों में बर्बाद होने ही वाला है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी वो लड़की नशा करता है, वो लड़का बहुत संसारिक पिक्चर देखता है, फिर भी उसको इतना अच्छा रिजल्ट क्यों, फिर भी उसको इतना अच्छा नौकरी में ब्लेसिंग क्यों? मैं बोला वो ब्लेसिंग यीशु की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान उसको क्यों नहीं सता रहा? क्योंकि वो पहले से ही शैतान के जेब में बैठा है। शैतान बोल रहा है ऑलरेडी वो मेरे उस गाड़ी में बैठा है जिसमें पेट्रोल नहीं, जिसका ब्रेक फेल है, किधर ना किधर पेड़ में कोई पुलिया में वो ठोकने वाला है। हालेलुया। इसलिए बच्चों, प्रभु की सेवकाई के लिए मजबूती से खड़े रहना है। और आखिरी पॉइंट क्या है? सर्व दोस हु विल नेवर सर्व यू। आमीन। किसी अच्छे चीज को पाने के लिए या सामने से कुछ अच्छा आए। अभी कमलेश जब प्रभु का सेवा करेगा तो कमलेश ये नहीं सोचना है मुझे कीबोर्ड सिखाना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए, कुछ मतलब के लिए सेवा नहीं करना है प्यारे बच्चों। आमीन। जब आप सेवा करोगे, मुझे भी प्रचार के लिए देना है, मुझे भी म्यूजिक सिस्टम सीखना है, मुझे भी कुछ पाना है, उस मकसद के लिए सेवा नहीं कर। क्योंकि याद रखना, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों का पाँव धो रहे थे तो यीशु मसीह ने जूडा का भी पाँव धोया, जिसने यीशु को धोखा दिया था, जिसने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर कुछ पैसों में यीशु मसीह को बेच दिया और यीशु मसीह को क्रूस के लिए बलिदान होने के लिए झूठा आरोप लगाकर यीशु को फंसाया। हालेलुया। उसके आगे के वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है जूडा इस्करियोता भी उस पाँव धोने की सेवकाई में मौजूद था। समय कम है मेरे पास, लेकिन ये सब जानते हुए भी यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसका पाँव धोया। हालेलुया। अगर सुष्मिता को मालूम पड़ेगा कि मैं सुष्मिता के ऊपर बहुत झूठा आरोप लगा रहा हूं कि सुष्मिता बहुत चोरी करता है, सुष्मिता बहुत गाली देता है, तो सुष्मिता मेरे पास आएगा अच्छे मन से? वो उधर खड़ा रहेगा, उधर बी विंग में खड़ा रहेगा, अंदर भी खड़ा नहीं रहेगा। बी विंग में कोई अंकल के घर में बोलेगा मुझे थोड़ा देर बैठने को दे दो। हालेलुया।
हाँ बच्चों, हमारे अगर हमें मालूम पड़ जाता है कि कोई हमें गिराना चाहता है, कोई हमसे नफरत करता है, तो हमारा स्वभाव उस व्यक्ति के प्रति बदल जाता है। आमीन। लेकिन याद रखना, जब भी सेवा करोगे कुछ पाने के लिए सेवा नहीं करना, कुछ पाने के लिए सेवा नहीं करना। यही प्रभु का एक आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मन के पाँव को भी धोया। यीशु मसीह जानते थे ये मुझे धोखा देगा, तो भी यीशु ने वो पाँव धोया। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है कि अगर कोई बिना दुश्मनी रख कर दी, बिना कुछ चाहे भी मैं दिल से सेवा करूंगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता मुझे ऊंचे स्थानों में लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए बच्चों, आज से आप भी ये समझ लेना, आपके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, है ना? दांत गिरने तक ये शिक्षा आप दे दो, कुछ पाने के लिए सेवा नहीं करना, किसी मतलब के लिए सेवा नहीं करना। हालेलुया। स्नेहा ने गाना गाया तो मैं भी गाना गाएगा, है ना? वैष्णवी ने पियानो बजाया तो मैं भी बजाएगा। हालेलुया। इसलिए बच्चों, यीशु मसीह ने हमें 4 पॉइंट दिया है प्रभु की सेवा के लिए, है ना? अब तक आप बहुत सेवा करते आए हैं, लेकिन आज जो शिक्षा मिला ये बहुत एक खास शिक्षा है। अब तक आप यही सोचते होंगे कि सुषमा जी जो गाइडेंस दिया उसमें भागना है ना? दया सिस्टर जो गाइडेंस दिया, अमन ब्रदर जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम बस वो काम करते जा रहे हैं। लेकिन वो सेवा का जो मूल्य है, आज वो पवित्र आत्मा में सिखाना चाहते हैं। तो 4 आशीष, 4 तरीका पवित्र आत्मा ने उस पाँव धोने की सेवकाई से हमें दिया। पहला, सर्व इवन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्टी। सेवा करो, लेकिन जब मुसीबत आएगा, जीवन में परेशानी आएगा, खुदा जानते थे बड़ा दर्द मेरे जीवन में आने वाला है, तो भी यीशु ने सेवा की। वो दर्द सहकर भी सेवा करेगा, तो यीशु बोल रहे हैं मैं तुझे धन्य बनाऊंगा। I will make you a blessed woman of God, a blessed child of God, एक आशीषित बच्चा मैं तेरे जीवन में तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, सेवा करते करते चाहे खुशियां आए, चाहे जीवन में परेशानी आए, संडे आराधना छोड़ना नहीं, प्रभु का आराधना छोड़ना नहीं। अक्सर ज्यादातर यही एक्सक्यूज है, घर में झगड़ा हो गया, पापा ने डांटा इसलिए मन नहीं आने का। ये सब नहीं करना, ये सब यीशु मसीह को पसंद नहीं। यीशु मसीह ने इतना दर्द सहकर भी, इतना निंदा सहकर भी अपना काम पूरा किया। यीशु चाहते हैं तू थोड़ा कोशिश करना है। हालेलुया। कितने बार आपको पता है प्रेयर शुरू होने के पहले पापा भयंकर रीति से डांटा। मैं ये नहीं बोला देखिए आप ही प्रचार करो, मैं जा रहा हूं, है ना? मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता, क्योंकि मुझे प्रभु का वचन याद है। यीशु ने कहा तकलीफ के समय भी बिना निराश किए, बिना दुख लिए दिल से सेवा करना। ऐसी एक सेवा आप करना बच्चों। दूसरा पॉइंट है, याद रखना कि मैं कौन हूं। जान लेना कि मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। मुझे एक मकसद से यहाँ बुलाया गया है। संकेंदु लैपटॉप चला रहा है तो मुझे भी चलाना है, ऐसा सोच के तो मत। आपको जो भी एक्टिविटी याद दिया जाता है, याद रखना मैं जो भी सेवा कर रहा हूं वो एक बात की बात है, लेकिन मुझे यीशु ने चुना है। मैं इस कलीसिया में बढ़ूंगा, इस कलीसिया में एक जवान बनकर प्रभु मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। वो एक रिमेम्बरेंस हमारे अंदर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, आपकी सेवकाई में जो भी रुकावटें हैं उससे आप लड़ना है। आमीन। शायद हर समय प्रार्थना जवाब नहीं देगा, हर समय उपवास जवाब नहीं देगा। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली शैतान आपको सताएगा। क्यों? शैतान चाहता है तो प्रभु की सेवा छोड़ दे। लेकिन याद रखना, प्रभु का सेवा करते रहना, क्योंकि यही प्रभु का आज्ञा है।
गलातियों के वचन में क्या लिखा है? तू लोगों के बोझ को उठाना है, तो लोगों के बोझ को उठाना है। आज पहले पापा पियानो बजाते थे, आराधना करते थे, उनके ऊपर सेवा का बोझ था, उस सेवा को मैंने हल्का किया, उस बोझ को अमल ब्रदर हल्का किया, उस बोझ को तमाम अभिषक्ति लोग ने हल्का किया। उसके बाद जब मैं 3 बार गाना गाता था तो मेरे जवानों ने मेरे बोझ को हल्का किया। हालेलुया। यही है प्रियजन, सेवकाई में रुकावट आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन याद रखना दूसरों के बोझ को उठाने के लिए यीशु हमें चुना है। यीशु मसीह हमें तैयार करेंगे। और आखिरी क्या है? कुछ पाने के लिए, किसी मकसद के लिए इधर आना नहीं। शायद सालों साल सेवकाई करते भी आशीष का रास्ता खुला ना हो, शायद सालों साल सेवकाई करते भी नौकरी मिला ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे? कुछ पाने के लिए कोई ग्रीडीनेस लेकर सेवा नहीं करना। हालेलुया। आइए बच्चों, अपनी आंखों को हम बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वर्गीय पिता, प्रभु जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, प्रभु आज इस वचन से उन बच्चों को आप ब्लेस कीजिए। प्रभु आज इस यूथ नाइट में कैसे आपकी सेवा करना है, किस मन से आपकी सेवा करना है, आपका सेवा का क्या वैल्यू है, प्रभु आज हमने जान लिया। प्रभु तेरी आराधना को कभी कभी मैंने हल्के में लिया प्रभु जी। प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी को प्रभु मैं सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज प्रभु जी तेरी आराधना करते करते ओ प्रभु यूथ डायरेक्टर के साथ प्रभु एक मन से मैं चला नहीं, मेरे जीवन में गलती हुआ, पाप हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। यस प्रभु जी, आज इस आराधना में पवित्र आत्मा इन बच्चों के अंदर वो सेवा का एक अभिषेक डाल रहे हैं। ओ ये सेवकाई का ये 4 आशीषित पॉइंट पवित्र आत्मा आप सबके अंदर डाल रहे हैं। हालेलुया। एक अद्भुत रीति से बच्चों आप सेवा करने जा रहे हैं। आज बहुत लोगों से बहुत हटकर और अलग तरीके से आप प्रभु का सेवा करने जा रहे हैं। यस प्रभु जी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। कुछ पाने के लिए प्रभु ने सेवा मना किया है। ओ बिना पाए, बिना कुछ लालचपन लिए दिल से प्रभु का सेवा करना है। यही प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है। यीशु मसीह का शिक्षा है कि तकलीफों को याद कर सेवा नहीं करना है। कितना भी आंधी आए, अपने मन को खाली कर दिल से प्रभु का सेवा करना है। यस प्रभु जी, मुझे वैसा बनाइए जिस तरह यूहन्ना आपका एक बड़ा प्रिय दास था, मुझे भी प्रभु प्रिय बनना है। प्रभु इस सेवकाई का 4 क्वालिटी मेरे अंदर आप दीजिए परमेश्वर। ओ मैं अब तक कुछ बातों में सीरियस नहीं था। ओ कुछ अभिशक्ति लोग मुझे जब बोलते थे मैंने कदर नहीं किया, लेकिन प्रभु जी ओ ये पवित्र वचन का जो मूल्य था, अभिशक्ति यूहन्ना ने जो दर्द, जो यीशु मसीह ने जो लहू बहाकर ये वचन मेरे हाथों में दिया, ओ इस सेवा को मैं थोड़ा लाइटली ले रहा था प्रभु, लेकिन मुझे सीरियसली बनाइए। आज से ओ पवित्र आत्मा मुझे बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आज से यीशु मसीह का ये 4 क्वालिटी मेरे अंदर आएगा और यीशु ये साल एक बड़ा बढ़ोतरी मुझे देगा। ओ प्रभु की ये सेवा करते करते, यीशु की ये 4 मन को लेकर सेवा करते करते बड़ा संभव कार्य संभव होते हुए, बड़ा मिरेकल होते हुए मेरे घर में मैं देखूंगा, मैं विश्वास करता हूँ। सारा आदर महिमा इस आराधना से तुझे मिले, यीशु नाम में, आमीन। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये सुंदर वचन और आराधना आज हमारे बीच रखी, और पास्टर एल्विन का भी धन्यवाद करेंगे कि इतने वचनों के जरिए हमें कैसा चलना चाहिए ये आज हमें सिखाया। प्रभु इस वचनों के जरिए सभी को आशीष करे। आज की हमारी इस यूथ नाइट मीटिंग को हम समाप्त करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगी प्रभु की बेटी सांझ यहाँ आके प्रार्थना से अगुवाई करे। Let's pray. Father, we give you thanks for being with us in serving you during this meeting.
God bless each of us who took their time to gather here today and protect us throughout the year. May your love and grace continues to guide us, everything we do. All work done here today be for your glory. In Jesus' name I ask. Amen.